Ladies and gentlemen, put your hands together. He, he is a computer science graduate who in fact made his Bollywood debut before entering politics, a member of parliament who is the rightful legatee of his father. He is Chirag Paswan, one of the youngest ministers in Prime Minister Narendra Modi's cabinet. But more so, he's also shaping the politics of India. Welcome, Chirag Paswan, once again. Chirag, thank you so much. Thank you. You know, it's interesting the kind of response that you hear. It's almost like you are an Instagram sensation also. Am I? Yeah, clearly. I mean, there are a lot of young generation which is watching you on Instagram a lot. What makes you, put out those reels that you do regularly? Well, nothing. Honestly, there's never been a thought behind it. And I don't know, and I have no clue why Insta sensation, some of the terminology I also hear about myself. I have no idea why, but I think it's just the love and affection that I get. I think it's only because of that. I don't know what else I've done to be called a sensation and stuff. Are you being modest here? Not really, because I have no clue. You know, because you really fought your way for your father's party. You are today a rightful president of Lok Janshakti Party, so I'm going to begin with that. What's your plan for your political party? Because you have moved your base to Delhi, quite literally, because you are serving in Prime Minister's cabinet. What's your party's future in Bihar? Well, I think I see a major role of my party in coming years. Not only in Bihar politics, but also my father had this ambition. He always dreamt of making Lok Janshakti Party a national party. Not that I'm being over ambitious, but then yes, this is one of my ambitions. Right now, I'm focusing more in Bihar because mainly it's Bihar-based party as of now. And we have elections in my state next year. So that's going to be my prime motive, my prime concern as of now, my priority as of now. But then eventually, yes, I mean, I want to get my party at the national level. Okay, so you have a timeline and a blueprint ready? Kuch tayari to ki hogi? I do have actually. But you don't want to share it? It's all right if you don't. Okay, so let's talk about, because you are also being seen right now as the conscience keeper of NDA 3.0. The reason why I'm saying is that you have made the government rethink on a number of policies, starting with lateral entry, then the Waqf board bill going into the JPC, something which was not done in the last 10 years. So what exactly you see as the role of NDA partners in this government? Well, I think in any government, allies do play a very important role. And same is the case here. And not that anything is different in this government. For the past 10 years also, in 2014, 2019, all the allies, unlike the general belief that, there's no say of the ally partners in this government and, they're not given importance enough. I mean, I don't believe, because I've been the part of this NDA government under the leadership of my Prime Minister for the past 10 years, and he has always acknowledged the concerns of allies. Similarly, this time also, see, as an ally, I have my own priorities. I have my own ideology. I have my own concerns. Had this not been the case, I think me and Bharatiya Janata Party would have been one party. Now, then why to have separate parties, Because my priorities are different, my ideology is little different, my concerns are different, is the reason why I'm a separate party. So yes, the points that you raised are the priorities and the concerns of my party, when it comes to the marginalized section of the society, whether they are the minorities coming from any religion, whether they are SCs, backward classes, people coming from backward classes. So yes, I mean, their issues are my priority.
And I just raised my concerns when it came to lateral entry, when it came to Waqf board. There was a Supreme Court observation about the creamy layer in the scheduled caste. So yes, I mean, these were my prime concerns which I raised in front of my government, and it was not only acknowledged, but it was addressed positively. वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दी है रामनाथ कोविंद पैनल को की रिपोर्ट को, और उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, आपके विरोधी दल, वो अपोज कर रहे हैं, उनका वो काम है, लेकिन उनका जो कंसर्न है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को अटैक है और आप लोग एक तरीका बनाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट बाय प्रॉक्सी का, कोई हिडन एजेंडा है दिख रहा है। पहले तो खैर कल मैं भी उस कैबिनेट बैठक में मौजूद था जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को हम लोगों ने स्वीकृति दी। सबसे पहले मैं मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि वो इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने कदम उठाए। अभी तक हम लोग सिर्फ सुनते थे, हवा हवाई ये बातें होती थी और दशकों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बिकॉज ये कंसर्न रहा है कि भाई हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। जब चुनाव होते हैं ना सिर्फ हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि जो मैन पावर का जो उनको डिप्लॉय करना, हमारे सेना के लोग हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, उनकी डिप्लॉयमेंट में जिस कार्य के लिए उनको चुना गया है उसको छोड़कर वो पूरा साल और 5 साल तक वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनाव में उनकी व्यस्तता बनी रहती है। साथ ही में जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये कहीं ना कहीं सरकार के विकास के कार्यों को की गति को रोकने का काम करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है, अभी देखिए अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले हम लोग जनरल इलेक्शन से निकल कर आए, उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं हरियाणा के चुनाव में है, इसके बाद अब हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में चले जाएंगे। तो ये सिलसिला बना ही रहता है। ऐसे में ज़रूरी है एक ही बार चुनाव हो जाए देश भर के, और उसके बाद अगले 5 साल सरकारें सिर्फ ध्यान केंद्रित कर कर उन चुनाव सरकार अपने कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ऐसे में जब विपक्ष ये बोलता है, मेरी समझ के परे है, क्योंकि ये व्यवस्था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से उस वक्त भी इसी व्यवस्था को बनाया गया था। मुझे लगता है लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा 67 तक, यस प्रिसाइसली, एक साथ ही सारे देश पूरे देश में चुनाव होते थे, भले वो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों। उसके बाद सरकारें गिरने बनने का सिलसिला शुरू हुआ और चुनाव आगे पीछे होने लगे। तो जब उस वक्त फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे के ऊपर अगर कोई चोट नहीं पड़ी, या उस वक्त अगर संघीय ढांचा, और जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त विपक्ष की ही सरकार थी जो आज चिंताएं खड़ी कर रहे हैं। उस वक्त नेहरू जी इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन अधिकांश उस समय के दौरान। तो ऐसे में संघीय ढांचे पर ये प्रहार कैसे है, मेरी समझ के परे है। मैं मानता हूँ आज की तारीख में देश की ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव हो जाए ताकि वो आर्थिक बोझ भी देश के ऊपर बार बार चुनाव कराने को लेकर जो पड़ता है वो समाप्त हो, और चुनाव होने के बाद अगले 5 साल सिर्फ देश के विकास के कार्यों को। इसमें होता है कि हमारे जी आप देखिएगा बजट भी जब आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उन राज्यों के में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बजट को भी डिज़ाइन करने का प्रयास किया जाता है। अरे अभी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, बजट में उस राज्य को ज़्यादा कर दो, उस राज्य को। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, ये गलत सोच है। मुझे लगता है अगले 5 साल बिना इस फिक्र के कि कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सरकारों को खुलकर अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए, जिसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, सो we'll take few questions and then I'm coming back to you for more questions that I have. Please pass the mic. Yes, go ahead. Hi sir, मेरा नाम मयंक है, and I just want to ask that what are your equation with the Pradhan Mantri, as it shows he always says mere Pradhan Mantri. So how, I think you have a special corner for him, rather than the party you have a soft corner. I do have that. So how that equation have? Like if he, rather than he is not in a like he is in a BJP, but if he is not a neta in that, so how it equation will be changed or same?
You know, when I was entering in politics, besides being a Nepo kid, when I was actively entering into politics, that was in 2013. Before that, I was in a previous profession, and when I was entering actively into politics, that was the time when my prime minister was shifting base to Delhi. You know, from Gujarat, he was projected as the prime ministerial candidate from BJP side and stuff. And that was when I started hearing his speeches and listening to his ideas and views. And something that really impressed me, that for once I saw a leader in my country who was talking about 125 करोड़ देशवासियों की वो बात कर रहे थे. उस वक्त की पॉपुलेशन का वो जिक्र कर रहे थे. उन्होंने किसी जाति का जिक्र नहीं किया, किसी धर्म का जिक्र नहीं किया. मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ. मैं भी जात पात धर्म मजहब में नहीं यकीन रखता. ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की. ऐसा नहीं है कि आप इसको एड्रेस किए बिना आप आगे जा सकते हैं. जहाँ ज़रूरत है एड्रेस करना भी होता है. बट देन मैं नहीं मानता कि हमारे देश को जातियों में बांट कर देखना चाहिए या धर्म के आधार पर बांट कर देखना चाहिए. पहली बार मुझे एक ऐसा नेता हमारे देश में दिखाई दिए जिन्होंने 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ, उनकी पहचान भारतीय की पहले बनाई और किसी जाति या किसी क्षेत्र की बाद में. तो उस सोच से मैं प्रभावित था और मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे इनिशियल ईयर्स ऑफ माय पॉलिटिक्स उसमें रहा. और ये रिश्ता उसी वक्त से बना और ये रिश्ता इतना मजबूत रहा कि जब मैं इस गठबंधन के साथ नहीं भी था कुछ कारणों से, इन 2020 यू नो मैं अलग हो गया था एनडीए से. बट उस वक्त भी मैं किसी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं गया. किसी दूसरे के साथ मैंने गठबंधन नहीं किया. एंड दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर. सो एक चीज़ मैं मतलब पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं चिराग पासवान उनके साथ है. Thank you so much, sir. The mic is being moved the other side. Okay, सर, Mrinal, हम go एक ahead. राष्ट्र एक चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग चुनावों में जो वोटर की मानसिकता होती है वो अलग होती है. फॉर एग्जांपल दिल्ली में लोकसभा चुनाव में 7 सीट भाजपा जीता और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार है. तो क्या एक राष्ट्र एक चुनाव से जो छोटी पार्टीज हैं क्या वो दरकिनार नहीं हो जाएंगी? क्या ये छोटी पार्टीज के साथ थोड़ा सा अनफेयर नहीं होगा अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो? आई थिंक इंडियंस, भारतीय इतने जागरूक हैं. मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये बातें कई बार कही जाती हैं. और अगर इसमें अगर रत्ती भर भी सच्चाई होती तो भाई आई वुड हैव बीन, मैं सबसे ज़्यादा अलर्ट मैं खुद ही होता. बिकॉज मैं खुद एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ जिसको आगे चलकर मैं बड़े मंच तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ. तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता. पर ऐसा होता नहीं. आपने जो उदाहरण दिया ये दिल्ली का वही वोटर है जो लोकसभा के चुनाव में इतनी स्पष्ट सोच रखता है और सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देता है. बट जब उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव आते हैं तो उसका मत बदल जाता है. तो ऐसे में मुझे लगता है कि इंडियंस, हम भारतीय इतने जागरूक हैं, हम समझते हैं भारत के संघीय ढांचे को खूबसूरती से समझते हैं. हमें पता है कि राज्य के चुनाव क्या होते हैं, हमें पता है देश के चुनाव क्या होते हैं. जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस में फ़र्क हम लोग जानते हैं और दोनों जगह कौन नेतृत्व कर सकता है. कितनी बार आप देखेंगे जिन राज्यों में एनडीए अलायंस या हाँ एनडीए अलायंस अच्छा करता है बट विधानसभा आते आते तक एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है. सारे states. काफ़ी ऐसे राज्य होते हैं. तो मुझे लगता है कि वो स्पष्टता है हम भारतीयों में. इससे वन नेशन वन इलेक्शन से वो इफेक्ट होगा मुझे नहीं लगता. अब हम उधर जाएंगे उस साइड. हाँ, प्लीज गो अहेड. द लेडी हियर. Hello Chirag, Hi. my name is Riya Belwal. My question is Bollywood movies जो सोशल कॉज पे होती है, सोशल इश्यूज पे होती है, जनरली उन्हें लेफ्ट विंग या राइट विंग का एक लेबल मिल जाता है. एंड यू ऑल्सो हैव अ प्रोफेशनल हिस्ट्री विद बॉलीवुड. बीइंग एन इनसाइडर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Former, yeah, it was a disaster what I have done. I was never an insider there. But anyways, You feel you are an outsider there? I mean, do you feel you don't belong I was an there? absolute outsider. I was nothing even close to being an actor, not even an A of an actor had. You have a But then yes, I think categorize कर दिया जाता है, गलत है.
हर क्षेत्र में राजनीतिक सोच को डाल देना, टू पॉलिटिसाइज एवरीथिंग, आई थिंक दैट्स नॉट करेक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी सोच है, बट आजकल ये सोच क्या है, हर क्षेत्र में घुस रही है, भले वो बिजनेस में हो, भले वो टूरिज़्म को लेकर हो, भले वो बॉलीवुड हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो उसको लेकर हो। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ और मैं नहीं मानता आइदर यू लाइक अ मूवी और यू डोंट लाइक अ मूवी, इट्स एज सिंपल एज दैट। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को साईफाई पसंद आता है, किसी को फैमिली ड्रामा पसंद आता है, किसी को पर्टिकुलर डायरेक्टर पसंद आता है, किसी को पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस पसंद आता है, ये अपनी सोच होती है। लाइक मैं आई लाइक हॉरर मूवीज़, आई लाइक थ्रिलर्स, यू नो, मेरे लिए वो कैटेगरी है। आप मुझे कोई फैमिली ड्रामा देखने बैठा दोगे तो मैं बोर हो तो जाऊँगा। अभी जो IC 814 पर और इमरजेंसी पे जो इतना डिबेट हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? इसमें डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे लगता है Censorship पर जो चल रहा है। दोनों फिल्में सेंसर बोर्ड के सामने गई। सेंसर बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है, अगर उनको किसी चीज़ को लेके कंसर्न्स हैं वो अपने कंसर्न्स रखेंगे। एक फिल्म को कोई कट नहीं लगा, दूसरी फिल्म पे मुझे नहीं पता अंदर की क्या IC जानकारी है, बट या OTT पे था। हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पे IC 814 उसको बिना कट किए उसको रिलीज़ किया गया या समथिंग, शायद सर्टिफिकेट आसानी से मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। मुझे लगता है ये बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये फैसले ले सकते हैं। अब इसके पीछे कोई राजनीति है या कोई एक लेफ्ट विंग की सोच रख रहा है और एक कोई राइट विंग की सोच रख रहा है, इसलिए ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं Yes, लगता। let's move the mic on this side, please. There are several girls waiting to ask question to Chirag. हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके इंस्पिरेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो क्या आने वाले 20 साल के अंदर अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे? नहीं बनूंगा। क्यों सर? मतलब हाउ डू यू आंसर दीज क्वेश्चंस? मतलब किसी को भी मौका मिलेगा, हर कोई और बनना अगर आप चाहेगा। बनेंगे तो आप क्या करेंगे सर? हाँ? अगर आप बने तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री बन के मैं ऐसा क्या स्पेसिफिक करूंगा, बट हाँ, अभी भी जब मैं राजनीति में हूँ, मैं बिहारी हूँ, बिहार से आता हूँ, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता हूँ। ये सोच मेरी ज़रूर रही है कि एकता की हम लोग बात करें, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हम लोग करें। कई बार जब राजनीति में जात पात धर्म मज़हब में बांटा जाता है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है भाई। इंडिया इज़ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। आप टॉप नॉर्थ से डाउन साउथ तक जाइए, ईस्ट टू वेस्ट जाइए, आपको अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोच के लोग आपको देखने को मिलेंगे। और भारत की खूबसूरती ये रही है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम सब एक मिलकर रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय आपकी पहली पहचान बने। मैं जिस राज्य से आता हूँ, मेरी शिकायत ही सबसे ज़्यादा ये होती है भाई कि मेरे राज्य में जब आप जाएंगे बिहार में, आपको भूमियार मिलेगा, आपको राजपूत मिलेगा, आपको ब्राह्मण मिलेगा, आपको पिछड़ा मिलेगा, आपको अति पिछड़ा मिलेगा, आपको दलित मिलेगा, आपको महादलित मिलेगा, आपको मुसलमान मिलेगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता है। एंड फॉरगेट कि आपको कोई भारतीय वहाँ पे मिलेगा। ये जो डिवाइड की जो पॉलिटिक्स है, जो आपको बांटती है इन सारे रीजनलिज्म में, रिलीजनलिज्म में, क्षेत्रवाद, जातीयता, इन सारी चीज़ों में, मैं इसके खिलाफ हूँ। कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इंडियन प्राइड, भारतीय अस्मिता को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना चाहूँगा। और इसीलिए इन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। यस, प्लीज गो अहेड, आई एम कमिंग टू यू। यस, नमस्कार सर। सर, आप बिहार से मंत्री बने हैं, बहुत दिन के बाद आपके कम एज का कोई बिहार से मंत्री बना है, तो आपसे बहुत भरोसा है हम मेरे जैसा युवा बिहारी को कि आप आइएगा तो बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। तो सर, जैसे आप बिहारी फर्स्ट विजन चलाए थे, बहुत पहले से चला रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो आप जो मंत्री बने हैं तो बिहार के लिए चाहते हैं हम लोग कि फर्स्ट आपके मंत्री से जो पहला साइन हुए तो इंडस्ट्री लगे बिहार में आपके इससे। तो आप कब लगवा रहे हैं बिहार में इंडस्ट्री? और हम लोग चाहते हैं कि आपके जैसा युवा नेतृत्व करें एनडीए का बिहार में। आपके जैसा युवा का जरूरत है सर मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि नीतीश कुमार जी 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम लोग चाहते हैं एनडीए का नेतृत्व कोई युवा करे। तो एक ही नेता दिमाग में आता है, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भरोसा भाई आपने जताया मुझ पर। प्रयास अपनी सीमाओं में रहकर मैं ज़रूर कर रहा हूँ।
मेरे मंत्रालय की जो जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा फूड प्रोसेसिंग की दी गई है, मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अगर आप विजन भी देखेंगे, मैंने उसमें भी कई बार मैंने इसका जिक्र किया था और मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा इसको मैनिफेस्ट कर दिया दैट इवेंचुअली मुझे इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जिक्र किया, हाजीपुर से आता हूँ, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है और मैं उदाहरण देता था कि यार ये हाजीपुर का केला जब डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स बनता है, उसके प्राइस दाम बढ़ जाते हैं। अगर यही यूनिट्स अगर हमारे बिहार में लगें, वहीं पर अगर केले के चिप्स बनाने के या उसके अलग अलग प्रोसेस करके जो पदार्थ बन सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं वो बने, तो उससे हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, मुझे लगता है रोज़गार के भी कई अवसर उससे मिलेंगे और राज्य के राजस्व में तो इजाफा होगा ही होगा, रेवेन्यू जनरेशन भी इससे होगा। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है हम लोग के यहाँ, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पे लगते हैं। एज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी देश भर की है, बट हाँ बिहारी हूँ तो बिहार में भी मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित है। इन तमाम विषयों पर भाई कार्य काफ़ी हद तक आगे पहुँच चुका है। मेरे कार्यकाल की समाप्ति तक तो खैर आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट अगले 5 सालों का जिक्र ना करते हुए अगले साल भर में इनमें से कई चीज़ों को आप धरातल पर उतरते हुए नहीं, उतरा हुआ आप देखिएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, I think we should keep it like an open house. I think this is going better than me asking you questions Your because there are a call. lot of young people who are interested in understanding your politics. Yes, please go ahead, ma'am. नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम वोटर्स हैं, हम बहुत ही उम्मीदों से वोट देते हैं और जो हमें मतलब जैसे शुरुआत होती है, जैसे मोदी जी आए, बहुत 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 सारे प्रॉमिसेस और बहुत कुछ उन्होंने शुरू भी किया, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे आप हमें लीड करेंगे आज से अब से, तो आप क्या जो प्रॉमिसेस करेंगे या जिस चीज़ को आप टेक ओवर करेंगे, क्या आप उसको बीच में छोड़ देंगे क्योंकि आपको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर आ रहा है या कहीं से प्रेशर आ रहा है? मतलब हम वोटर्स की कहीं ना कहीं उम्मीद धीरे 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 करके कम हो जाती है। जब हम वो देख रहे हैं, वो ऊपर तक जाते जाते चीज़ नीचे को आ जाती है। होता क्या है ना, आप जब एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं तो आपका जो जोश होता है संभवतः वो कम होने लगता है। सरकारें, मैं हमेशा मानता हूँ, जब जब देश की जनता ने सरकारों को एज पे रखा है, सरकारों को बाध्य किया है डिलीवर करने के लिए। मैं उदाहरण इसका मेरे ही राज्य से मैं दूंगा। मेरे राज्य में बिहार में राजनीतिक दलों को, नेताओं को ज़्यादा मेहनत विकास के कार्यों को लेकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनकी इक्वेशंस बहुत क्लियर होती हैं। व्हेन आई एम सेइंग दिस, मुझे बुरा लगता है ये बोलते हुए, बट उनकी इक्वेशंस बहुत क्लियर हैं कि हमें अपने जातीय समीकरण बना लेने हैं, जिसको एक बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी दे दी गई है, सोशल इंजीनियरिंग। आप सोशल इंजीनियरिंग करके अपने जातीय समीकरण आप सेट कर लीजिए कागज़ पर। ये अपर कास्ट है, इसके इतने % वोट मिल जाएंगे, ये दलित हैं, इनके इतने % मिल जाएंगे, ये मुसलमान हैं, इनके इतने % मिल जाएंगे। ये कागज़ पे बैठ के समीकरण बना लिए जाते हैं। उसके बाद वो राजनीतिक दल और वो नेता सोचता है कि मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब तक ये समीकरण मेरे साथ है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हम सब का एज वोटर, मैं भी वोटर हूँ, हम सब की एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अपने नेताओं को एज पे रखना ज़रूरी है। जो काम नहीं करते उनको अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है, उनसे सवाल करने ज़रूरी हैं। पर इसके विपरीत जब चुनाव आते हैं तो हम लोग जाति पर चले जाते हैं। अरे मेरी जात का है, इसको वोट दे दें, भले उसने पिछले 5 साल कोई काम ना किया हो, आपके क्षेत्र में भी नहीं आया हो, हम लोग यहाँ बोलते हैं अरे वो हमारा जात भाई है, उसी को हम वोट देंगे। ये गलत होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से बनती है कि जो सरकारें अपनी सोच से डगमगा रही हैं या जो अपनी सोच को धरातल पर नहीं उतार पा रही हैं। आपने ये प्रश्न मुझसे भी किया है, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चिराग पासवान ना किसी दबाव में आता है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मुझे कोई लालच है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मैंने सब देखा है, तो ना मुझे किसी मंत्री पद का लालच है, ना मुझे किसी सत्ता का मोह है। मैंने हमेशा अपनी सोच की राजनीति की है और वो मैं हमेशा करता रहूँगा। ये वादा ज़रूर Chirag, करता there's हूँ। questions coming on this side, ma'am. Yes, please go ahead. Hi sir, Kashish this side.
सर अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल लाइफ मतलब पॉलिटिक्स से असाइड होके टेल अस अबाउट योर सोशल लाइफ कि व्हाट यू लाइक टू डू मोस्ट मतलब सोशलाइजिंग कैसे करते हो आप? मैं करता ज़रूर हूँ, मैं आई वोंट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि अरे समय ही नहीं मिलता है, ये भी फैक्ट है, बट जितना भी मिलता है मैं करता ज़रूर हूँ सोशलाइज। ये मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे पिता ने इस बात को हमेशा सुनिश्चित किया, नो मैटर हाउ बिजी, एंड ही वॉज अ वेरी वेरी बिजी मैन। आई मीन I feel pride. I mean, I feel so proud saying this, that he was one leader, you know, who worked as a cabinet minister under the leadership of 6 different prime minister. Right from VP Singh ji to Deve Gowda ji to Gujral Sahab to Vajpayee Sahab to Manmohan Singh ji and my current prime minister Narendra Modi ji. इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा कोई बर्थडे मिस किया हो या उन्होंने मेरी कोई पीटीए मीटिंग मिस की हो। हमेशा मेरे स्कूल में एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो, वो रहते ही रहते थे। और उन्हीं से मैंने ये टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा। ये प्रयास मैं भी करता हूँ, परिवार के लिए भी समय निकालता हूँ, दोस्तों के लिए भी समय निकालता हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ तब खड़े थे जब कोई नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया जब दुनिया ने मुझ पे से विश्वास उठा दिया था। मेरी पॉलिटिकल ऑबचुरीज 3 साल पहले लिख दी गई थी, महाराज जी, हु नोज बेटर देन यू। सो मुझे पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया गया था। उस वक्त जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ भी समय बिताऊं। आई लव माई मदर, सबसे ज़्यादा समय मैं उनके साथ बिताता हूँ। I was hoping that she'll join us today. Yes, please. See, there's so much of curiosity besides your politics about other aspect of your life as well. Yes, please. There are more girls here. Yes, go ahead. Maria ma'am, can I ask? Yes, please. Hi Chirag sir, myself Dilnashi Zehra. I just wanted to ask, as a most youngest minister, as a leader, आपका अगले 5 साल, आने वाले 5 सालों में आपका विज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी से जो चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली फॉर द यूथ, स्पेशली फॉर अस, फॉर द यंगस्टर्स, एम्पावरमेंट की बात करें तो उसका विज़न आपको, उसका विजन लेकर के आपका Artificial क्या है? intelligence is a matter of concern, and at the same time, you realize that how much it has made our lives easier. So definitely, I mean, use of technology, I mean, this is something that we should not and we cannot run away. हर मुझे लगता है नई कोई चीज़ आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आते ही आते हैं। वो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं और ये समय समय पर किए हैं। जब पहली बार कंप्यूटर आया था उसका भी विरोध किया गया था। उस वक्त भी कहा गया था कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा, लोगों से रोज़गार छीन लेगा, 10 आदमियों का काम एक मशीन कर लेगी, तो लोग कहाँ जाएंगे। बट आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई अगर उस वक्त भारत अगर कंप्यूटर्स को नहीं अपनाता या उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता तो आज हम लोग कहाँ पर रहते। समय के साथ टेक्नोलॉजीज़ बदलती हैं और उसके साथ हम लोग को भी अपने आप को एडेप्ट करते रहना है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ नहीं हो। अब एआई के जहाँ इतने सारे बेनिफिट्स हैं बट हाँ उसको मिसयूज़ होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। मैं खुद अपने कई ऐसे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे मेरी एआई इमेजेस को बनाकर आई एम डांसिंग ऑन सम रैंडम सॉन्ग एंड स्टफ। तो ये सारी चीज़ें भी देखने And को it's मिलती rather हैं। interesting, Chirag, that even while we were talking, I just did a quick word and I asked who is Chirag Paswan on AI. And I was told that he is an Indian politician and former actor who's making waves in the country's political scene. So, you know, when like this AI. Yeah, so it says you are making waves already. Yes, please, go ahead. More girls there. Yes. Sorry, ma'am, just one small question. Sir, I just wanted to know कि जो आपके बॉलीवुड की लाइफ थी earlier in the past and जो अभी एज अ पॉलिटिशियन जो आपकी लाइफ है, जैसा एज लाइक कंगना रनौत एज एन एक्टर, वो भी फिल्म्स कर रही हैं बावजूद पॉलिटिशियन होने के। सो बावजूद पॉलिटिशियन होने के Is something brewing there? no, Because, no, 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 you know, because there is a lot of curiosity and there is something very, you know, very endearing about the interactions in which it has been happening. So my question was कि अगर आपको अभी भी एज अ पॉलिटिशियन अगर आपको कोई फिल्म यू नो आपको ऑफर करता है तो क्या आप करना चाहेंगे? अदरवाइज मेरा सवाल यही था कि वो लाइफ आप ज़्यादा पसंद करते थे या एज अ पॉलिटिशियन वाली लाइफ? मैं जब फिल्में क्या एक ही फिल्म की थी, उसके बाद तो किया ही नहीं कुछ, मिला ही नहीं कुछ। उस वक्त मुझे फिल्में किसी ने ऑफर नहीं की जब मैं वहाँ पे था, तो आज तो मुझे कौन ही करेगा। और हर वो व्यक्ति जिसने मेरी फिल्म का
1 मिनट का भी हिस्सा देखा हो, वो कतई नहीं सोच सकता कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। okay. तो इसलिए उस क्षेत्र में वापस जाने की संभावना ही नहीं है। Yes. हाय सर, माय नेम इज़ अनन्या। सो आपने आज ही कई बार ये मेंशन करा कि आप जात पात के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल युवा के नज़र में बीजेपी सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाली पार्टी बन चुकी है मज़हब के बेसिस पर आप उसी के लाए हैं, क्यों? देखिए, परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं और कई बार फॉल्स नैरेटिव को इतना इनग्रेव कर दिया जाता है, कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच लगने लगता है। आयरनी देखिए, विडंबना देखिए, मैं इस गठबंधन का हिस्सा ठीक इसकी विपरीत सोच की वजह से ही बना था, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। 125 करोड़ देशवासियों की चर्चा मेरे प्रधानमंत्री करते थे। उन्होंने कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी अलग जाति या अलग धर्म की चर्चा कर कर उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया उनके भाषणों में, और इसी सोच से प्रभावित होकर मैं उस गठबंधन का मैं हिस्सा बना। आज भी जब मेरे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये वही इंक्लूसिव राजनीति है जिसका पक्षधर मैं रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जिसको अगर किसी गठबंधन में सांप्रदायिकता की रत्ती भर भी आहट सुनाई देगी, कम्युनलिज्म हो या जातीयता हो, अगर लगेगा मैं खुद अपने आप को डिस्टेंस कर लूँगा। बट इस सरकार का हिस्सा होने के नाते क्लीशेड एग्जाम्पल्स दूंगा, बट वो सत्य हैं। कौन सी ऐसी योजना है मेरी सरकार की जो जाति या धर्म के आधार पर बनी हो? उज्ज्वला योजना, जिसने गांव-गांव में महिलाओं के पास गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, किसने उसमें जाति देखी या धर्म देखी? आयुष्मान, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी हेल्थ से जुड़ी हुई योजना है, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये मुसलमानों के लिए है या सिखों के लिए है या ईसाइयों के लिए है या सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये चर्चा ही नहीं होती। ये वही फॉल्स नैरेटिव हैं जो विपक्ष और कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी की सोच को भटकाना चाहते हैं, वो सेट करते हैं। मुझे लगता है अपनी अकल लगाओ, दूसरों के कहे बातों पर All नहीं right, जाना चाहिए। we have really come to the end of this discussion. I'm sure you want to listen to Chirag more and ask him more questions. His Instagram is open and so is his Twitter. You can DM him and ask direct questions. Your final thought, Chirag, the Yuva, where is the Yuva of the country heading? So, where is the युवा of country heading? से ज़्यादा युवाओं को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। एंड ऑल यू यंगस्टर्स, मैं कोई नहीं होता आप लोगों को सुझाव देने वाला, बट मेरा एक अपना अनुभव है, उसके नाते मैं ये शेयर आपसे ज़रूर करूँगा। अपनी ताकत को पहचानिए। भारत एक युवा देश है। भारत की एक बड़ी आबादी, लगभग 65% की आबादी ऐसी है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। मैं उस वाले ब्रैकेट से निकल चुका हूँ, बट 35 वर्ष से कम वाली बड़ी आबादी है, और ये बहुत बड़ी ताकत है हम लोग के हाथ में। इस ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल हम लोग को करने की ज़रूरत है। अगर हम युवा एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तकलीफ तब होती है जब हम युवा ही बंटने लगते हैं। हम लोगों को अपने आप को एकजुट कर कर, और ये भारत जैसे देश के लिए जहाँ पे हमारी आबादी कई बार नेगेटिव भी जाता है, बट मैं मानता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ी ताकत है। भारत की 140 करोड़ की आबादी, जिसमें से 65% युवा हैं। अगर हम लोग अपनी युवा सोच को धरातल पर उतारने में कामयाब हो गए, मैं भी इसके लिए आप लोग की हर संभव मदद करूंगा। मैंने एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का जिक्र मैंने अक्सर किया है। हमारे देश में बाल आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग हैं, पिछड़ा आयोग हैं, हर तरीके के आयोग हैं, बट भारत जैसे युवा देश में एक युवा आयोग की भी ज़रूरत है। एक नेशनल यूथ कमीशन, जहाँ पे हम युवा अपनी समस्याओं के साथ जाएं, समाधान लेकर आएं। एक ऐसी नोडल एजेंसी जो सिर्फ युवाओं को एकजुट कर कर, उसमें ये नहीं देखे कि ये अगड़ा युवा है, ये पिछड़ा युवा है, या ये दलित जाति से आने वाला युवा है, सिर्फ युवाओं की बात करें। ये सोच को हम लोग धरातल पर तभी उतार पाएंगे जब हम सब एकजुट होंगे। और सिर्फ यही आग्रह आप लोगों से करूंगा, अपनी ताकत को पहचानिए। एकता बहुत बड़ी शक्ति है। Thank you so much. Let's end this conversation on this note. Thank you, Chirag Paswan, for your time Thank you. here. Thank you so much. Pleasure for, you could come on our Munch of NDTV. Thank you so much.